जी अस्सलाम वालेकुम boys and girls. Today I'm going to introduce syllabus of the Cambridge Business Studies and code of our course is 7115. So first of all, as I told you before, or that was intro also, I told you that why we study the Cambridge. Well, there are three major points which make us convinced to study the Cambridge. Very first is the assessment. Well, Cambridge is international assessment which is recognized by the different universities, and it's a reputable degree among different colleges and universities. Secondly, bete, why we choose this? Because आपकी the most famous and world best universities accept Cambridge, ठीक है, और they give you admissions, they give you scholarships and many more opportunities are there. And if I talk about third and major point which convince a lot, nearly millions of the Cambridge students from 10,000 schools in 160 countries prepare for their future with an international education from Cambridge International. तो बेसिकली देखें कि इट्स वेरी रिनाउंड, इट्स नॉट जस्ट कि इट्स अ पाकिस्तानी सिस्टम, इट्स एन इंडियन सिस्टम, इट्स अ ब्रिटिश सिस्टम, इट्स अ वेल रिनाउंड सिस्टम अमंग द वर्ल्ड. ओके. और सेकंड जो इसका बेस्ट पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट. तो क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप इस सिस्टम जो है दैट इज़ अ वेरी वेल मैनेज्ड. इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे वो यूज़ टू से दैट कि यार मैट्रिक में वो जो दादा ने पढ़ा था वो आज पोता पढ़ रहा है. दैट इज़ नॉट द सिस्टम लाइक दैट. Okay, now we will come to the contents and why we choose this syllabus overview की अगर बात करें तो सबसे पहले एम्स हैं. एम्स में हम contents का overview लेते हैं कि why we are going to study this और what we are going to learn, way of assessment क्या होगा, assessment का overviews क्या होंगे और detail of assessments क्या है, पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा. These are the different questions which are in the mind of the students and they don't have that much clarity about that. और इसके अलावा बेटे व्हाट यू हैव टू नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू स्टडी फर्स्ट, व्हाट टू गो नेक्स्ट, where are the topics, if we got confused in certain topics then how and from where we could help. So all that questions come into your mind. I will today just elaborate the syllabus and then we will discuss one by one that how and by which means I could help you people. So first of all, the key benefits of the Cambridge. So Cambridge, this is not the education which make you to memorize the thing, which make you to keep the things in your mind. Basically, Cambridge is a system which make you confident, which make you responsible, reflective, innovative, and engaged. This is not like other educations like you are focusing on a book is to you and you have to memorize all the things and after that you have to paste it onto the paper. So if somebody have a good memory he could have the 100% marks, and somebody who's having a dull memory but he's quite sharp but he is not getting marks. तो कैम्ब्रिज आपको जो है वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करता है. कैम्ब्रिज प्रोवाइड यू चांसेस टू गेज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली ना. This is not like that you have just to cram the things. There is the marks for the cramming but if we further move on, there are multiple streams by which we can categorize the students. Although some marks are toward the cramming, but here we have to implement that cramming. We have to make that thing implemented in our डे टू डे एक्टिविटीज़. बेसिक एम्स की बात करें सिलेबस ओवरव्यू के अंदर तो सबसे पहले तो आपने क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, फिर उसके बाद उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना होता है रेलेवेंट टर्म्स को. लेट्स सपोज आपके पास कोई केस स्टडी आती है तो वो ऐसे ही नहीं सॉल्व करनी है आपने, बल्कि उसके लिए आपने बेसिस प्रोवाइड करनी है थ्योरी की. तो आपने जो ग्राउंड बिल्ड करना होता है दैट इज़ द थ्योरी विच यू हैव लर्न, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, जिसे हम क्रैमिंग कहते हैं. तो यू हैव in your back mind, now you have to put it into the scenarios. We have different scenarios. Now you will put that thing जो कि आपने लर्न आउट किया है, जो आपने क्रैम किया है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग के अंदर एब्सॉर्ब किया है, इसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करके और अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस आपने उनको यूटिलाइज़ करना होता है. फिर अपनी डिफरेंट स्किल्स को आपने इन्हेंस करना होता है, जिसमें न्यूमरेसी है, जिसमें लिटरेसी है, जिसमें
इक्विटी है, जिसमें सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ द रेलेवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. लाइक यू हैव टू सपोर्ट ना, वी हैव two things over here na. In certain cases you have to decide among the two things, so if you don't have the knowledge base you can't select the best thing. So here we mark your selection, and not just selection but also what the criteria behind that selection, these things are being marked in that. अगर हम कंटेंट की बात करें तो इट्स अ वेरी comprehensive content and it will help you in your next further studies also. It's give you a grab over the basic introduction to the business, which will help you in graduation and masters even. First of all, you have to understand what the business activity is, what the business is, and types of business क्या होती हैं, and what the people of business are, what is the sole trader, what is the corporate, what is the company, and different things. फिर हमने बात करनी है marketing. Marketing is a very important playground in the business field, because if your marketing is not perforated and good, that means you will get not the business, you can't sell your product in a exact way to the customer. So that is why marketing is very important. You will have the marketing information and you will have all the terminologies which are the elements of marketing that will let you know that how you have to deal with the market. Then is operation management. Once we have the marketing with you, now we have to see where the operations are in the business, how the production is moving on, what is the production, how we can get the quality production. So it's a very important thing. Then the financial information. Look, for a businessman or for business people, we have to have all the info. We must know about the marketing, we must know about the operations. Now we must know the financial, because financials are quite important, and if somebody don't know about the financials, the other people can easily cheat him. But if he has info and he know the things, so he can grab internal control, he can best control the things. So all these things are very comprehensively managed. Now we will see that what the paper 1 is and what the paper 2 is. Paper 1 beta G, simply that is the short answers and question. Data is quite short, but it consists of 50% of the paper, and the time is same 1 hour and 30 minutes. But you have the small case studies, small scenario based case studies, which you have to answer accordingly on the basis of your knowledge, plus some implementation of your theory. Then पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग केस स्टडी, वन केस स्टडी, होल द पेपर बेस्ड ऑन दैट केस स्टडी, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ योर मार्क्स. ठीक है बेटा जी. नाउ then come how the examiner will assess ourselves, what are the basic criterias and tools in the O levels on the basis we are being analyzed. So first of all, knowledge and understanding the facts, terms and concepts which you have to implement further. So सबसे basic जो आपका criteria है वो वही है जो कि normally other streams of education के अंदर है, that is the knowledge what you have grabbed from your books. Then application, it is very important phrase na, you have to implement your knowledge now na. This is the advanced stage of knowledge. Once you grab the knowledge, you have the things in your mind, now you have to implement that thing on your paper, on your given circumstances, on your given case studies. You have to implement the knowledge. Then is O3 AO3 की बात अगर कहते हैं तो बेटे this is basically evidence and opinion in a business na. Like as I told you earlier, you have to select certain thing na. If you have two possibilities, you have to choose one, so you have to have the arguments why you are in favor of the one, why you are not in favor of the other. For that you must have some analysis skills, for that you must have some background on knowledge, you must have to know how to deal with the data and the graphs and other things by which you can compare two or three things. Then is the evaluation. When you have all the things with you, now you have to present the reasoning why you are choosing this thing ना. Develop certain arguments. आपको अपना जो आपने एक एरिया सेलेक्ट किया है, आपने जो अपना बिजनेस सेलेक्ट किया है, आप जिस चीज़ के राइट में हैं, आपने अब उसको डिफेंड करना है, आपने अब उसको जो है सेव करना है. दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट
एलिमेंट और जो आपके लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली जो 6 to 8 मार्क्स के होते हैं, दैट आर कंप्राइज ऑफ दैट। अब हमने देखना है कि इनकी बेसिस के ऊपर डिवीजन ऑफ मार्किंग क्या होती है। तो here we have the division of marking. Knowledge is of 40%, then application is 20%, analysis is very important 25%, and then we take evaluation के 15% होते हैं। फिर उसी को हमने फर्दर कैटेगराइज किया है पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर। नाउ जस्ट आप लोगों को जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वाई वी हैव टू स्टडी द बिज़नेस और इसके अंदर होगा क्या। हमने टेबल ऑफ कंटेंट को समहाउ थोड़ा सा देखा था, अब हम उसको इन डिटेल देखेंगे कि बिज़नेस एक्टिविटी की अगर बात करता है तो वेरी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पर्पस एंड नेचर ऑफ द बिज़नेस की बात होगी। उसी के अंदर सेकंड में अगर बात करेगा तो इन टर्म ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस बात करेगा। फिर थर्ड इसी का पॉइंट है जिसमें वो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेज़ की बात करता है, एंटरप्राइज के डिफरेंसेस की बात करता है, फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिज़नेस की बात करता है। देन टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडेड है, पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, दीज आर द थिंग्स ओवर हेयर। बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स तो हमने वेरियस ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कैसे सस्टेनेबिलिटी होती है, सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल के बाद ग्रूमिंग एंड प्रॉफिट, एंड देन प्रॉफिट के बाद जो एक्सपेंशन एंड मार्केट शेयर की बात करता है। फिर एम्प्लॉयज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी हैव टू टेक प्रोडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो फिर यहाँ एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन की बात करेगा। तो फिर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ मोटिवेशन, वन इज़ मॉनेटरी टर्म एंड अदर इज़ अ नॉन मॉनेटरी टर्म। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को लेके चलेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करेगा, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल क्या होते हैं, ट्रेड यूनियन का फंक्शन एंड ट्रेड यूनियंस की बात करेंगे। देन वी हैव कम टू द HRM, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, हाउ वी रिक्रूटमेंट के वेरियस मेथड्स क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए बेसिक टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होती है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन। Communication is very important, although we have to communicate in two different ways. We have to communicate internal यानी within the organization and outside the organization. Inter-department communication भी होती है, और उसके बाद डिफरेंट आपके गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आपको कम्युनिकेट करना होता है। देन मार्केटिंग, बेटे मार्केटिंग का हमने बात करनी है। मार्केटिंग इज़ बेसिकली मार्केटिंग मिक्स की बात करेंगे, मार्केट चेंजेस की बात करेंगे, मार्केट रिसर्च की बात करेंगे, हाउ द मार्केट रिसर्च हेल्प अस टू एनालाइज आवर कस्टमर, और मार्केट रिसर्च कितनी किस्म की होती है, इसमें प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, और टूल ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, और रिसर्च हाउ वी कंडक्ट द रिसर्च। Then we will talk about the marketing mix, 4 P's of the market, which is consist of product, price, place, and promotion, and different technologies, which is packaging related. Then the marketing strategies, what the strategies we have to use, the penetration, market development, product development, what we are going to use to develop our marketing strategies ना। देन इज़ द ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम प्रोडक्शन को देखेंगे, क्वालिटी को देखेंगे, TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करेंगे प्रोडक्शन के अंदर। देन वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस को कैसे कंडक्ट किया जाता है। देन हमारा जो है वो क्वालिटी प्रोडक्शन और लोकेशन डिसीजन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द बिजनेस। हमने लोकेशन डिसाइड करनी होती है ऑन द 2 bases or 3 bases, one is the customer, one is the product, and other is the raw material. If our raw material is very heavy and our customer and our finished goods is not that heavy, so they will establish factory somewhere near our रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल। जैसे अगर हम बात करते हैं लाइमस्टोन्स की, सीमेंट की, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम फिर इसके लिए माउंटेनियस एरियाज़ को चूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे FMCGs वगैरह की, तो वी यूज़ टू हैव द प्रोडक्शन यूनिट नियर सम अर्बन एरियाज़।
उसके बाद बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस क्या है, फाइनेंस की सोर्सेज क्या हैं, इंटरनल फाइनेंस क्या होता है, एक्सटर्नल फाइनेंस क्या होता है, डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग का डिफरेंस देखेंगे। देन द कैश फ्लो, कैश की इनटेक क्या है, कैश की आउटफ्लो क्या है, हमारे पास कैश आएगा कहाँ से और हमने कैश को यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ करना है। फिर हमने वेरियस फाइनेंशियल टर्म्स को देखना है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है, इन तमाम चीज़ों को हम इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे। देन एनालिसिस ऑफ द अकाउंट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी रेशो को देखेंगे। बिजनेस कंडीशन हमें बता देता है दैट वे वी आर स्टैंडिंग, वी आर लिक्विड और नॉट। देन इकोनॉमिक इश्यूज लाइक बिजनेस साइकिल, आपको पता है कि बिज़नेस इन द स्टार्टिंग जो है वो इंट्रोडक्टरी फेज़ पे होता है, फिर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मेचोरिटी होती है, डिक्लाइन होती है। दीज आर द बेसिस बिजनेस साइकिल्स, इनको हम देखेंगे। देन इन्वायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज़, कहीं हम डैमेज तो नहीं कर रहे, व्हाट आर द ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंट गैसेस इशू एंड व्हाट आर डिफरेंट इन्वायरमेंट इश्यूज़। फिर इसके अलावा डिफरेंट, आपको पता है, एनजीओज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम प्रेशर ग्रुप के तौर पर यहाँ स्टडी करते हैं। फिर सर्टेन थिंग्स विच आर एथिकली रॉन्ग बट लीगली राइट, उनको भी हम यहाँ देखेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी थोड़ा सा इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। दैन एज अ बिजनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, फिर हम ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और हाउ द लोकल बिजनेस इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोबल बिजनेस, और इसके अलावा इस इम्पैक्ट और इस एक्सचेंज को हम किस तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसकी वजह से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल हैं और कौन कौन सी हार्मफुल हैं फॉर द लोकल बिजनेस, उस पर बात करेंगे। पेपर 1 शॉर्ट आंसर और डेटा रिस्पॉन्स होता है। पेपर 2 जो है लॉन्ग केस स्टडी होती है और उसी के ऊपर चलती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बिजनेस intro, and I think it should help you people to understand the basics of the business and you can focus on that. फर्दर हम इसकी मार्किंग स्कीम्स वगैरह को भी और सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, बट ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, सो वी विल हैव ऑल दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्लस आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनकी इन्फो आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।